So let's continue. Let's continue. So all right. So last class we were discussing standard enthalpy of neutralization. उसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि it is the enthalpy change when one mole of strong acid and one equivalent of strong acid and one equivalent of strong base react blah 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 whatever. अब देखो यहाँ पे फिर उसके अलावा हमने इक्विवेलेंट का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए हमने एक और टर्म डिफाइन किया था which was your n factor. I don't know यहाँ पे कहाँ पर. Anyways, so we had discussed another concept called as your n factor. n factor was कि कोई भी एक एसिड मुझे कितना H प्लस दे सकता है या फॉर अ बेस इट वाज कोई भी एक बेस मुझे कितना OH माइनस प्रोवाइड कर सकता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेक सल्फ्यूरिक एसिड तो इन दैट केस उसका n फैक्टर कितना आएगा. करेक्ट. सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि मुझे 2 H प्लस दे सकते हैं तो उसका n फैक्टर 3 आएगा. लेट्स से इफ आई टेक एसिटिक एसिड CH3COOH तो उस केस में मेरा n फैक्टर क्या रहा था. करेक्ट. इन दैट केस the n factor was 1 बिकॉज वी वर नॉट सीइंग कि मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, मुझे ये देखना है कि मेरे पास H प्लस कितने हैं. सिमिलरली इफ आई टेक फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 तो इन दैट केस क्या आएगा बताओ मेरा n फैक्टर. Correct. In that case, my n factor would have been 3. So n factor for an acid is the number of H plus that it can give, and n factor for a base would be the number of OH minus that the base can give. For example, अगर मैं आपको देता हूँ, let's say potassium hydroxide. So potassium hydroxide the n factor would be obviously 1 because the formula is KOH. Now supposedly अगर मैं आपको example देता हूँ calcium hydroxide का n factor कितना आ जाएगा. Obviously that would be 2. Okay, so I hope n factor सभी को clear है. Now equivalence very simply क्या होता है. Equivalence is very simply moles into n factor, as simple as that. कहने का मतलब अगर suppose करो मैं लेता हूँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो HCl का n factor कितना होता है बताओ. Correct. HCl का n factor is 1. So if I take 5 moles of HCl, how many equivalents would I have? Correct. I would have 5 equivalents, as simple as that. और यहीं पे अगर मैंने HCl के जगह अगर 5 moles of H2SO4 लेता, अगर मैंने instead 5 moles of H2SO4 लिया होता तो in that case मेरे equivalents कितने आते. In that case I would have had 10 equivalents. क्या अब ये आप सभी को समझ में आया. Now do you understand why we have done 1 equivalent here instead of 1 mole? Okay. So यहाँ पे देखो आपका बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपका 1 equivalent of strong acid and 1 equivalent of strong base रिएक्ट करता है the amount of energy released is minus 13.7 kilocalorie per equivalent. तो यहीं पे अगर आपके पास 2 equivalents रिएक्ट कर जाए तो in that case आपका कितना एनर्जी रिलीज होगा. वेरी सिंपली इसका डबल. इज दैट क्लियर टू एवरीवन. ओके. Now अब देखो आपको इस पे क्वेश्चन टिपिकली किस टाइप का आता है. Now there are 3 types of question that you can get here. That is strong acid with strong base. Okay. One part weak, that is या तो strong acid होगा और weak base होगा या तो weak acid होगा and strong base होगा. So both strong, one weak and the last part is both weak. अब देखो उसमें भी आपको specifically question किस तरह से आता है. So pay attention. Now type 1 which is your both strong, उस पे देखो आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है. टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सपोज करो आपको एग्जांपल दिया जाए. सपोज करो आपको एग्जांपल दिया जाए कि 5 moles of HCl react with let's say 10 moles of CaOH twice completely find enthalpy change for the reaction. Okay. ना देखो अब आप ऐसे केस में सबसे पहले क्या करोगे. देखो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल. सबसे पहले आप यहाँ पे रिएक्शन लिखो तो मेरा बेसिक रिएक्शन क्या होगा. CaOH twice plus HCl giving me CaCl2 plus H2. yes or no? This is not yet balanced, but अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहाँ पे twice आ जाएगा एंड यहाँ पे मेरा एक twice आ जाएगा. देखो चेक करो इज दिस बैलेंस्ड और नॉट. बैलेंस्ड है. ओके. नाउ लेट्स पुट मोल्स हियर. सो ये मेरे पास 10 मोल्स है, ये मेरे पास 5 मोल्स है.
नाउ वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे मेरा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, बताओ। करेक्ट, यहाँ पे मेरा, हाँ यहाँ पे मेरा लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो HCl होगा। क्यों? क्योंकि 1 को रिक्वायर्ड है 2, तो 10 को रिक्वायर्ड होता 20, बट मेरे पास तो 20 से कम है, राइट। सो HCl इज माई लिमिटिंग रिएजेंट हियर। सो HCl विल गेट कंज्यूम्ड कंप्लीटली। सो HCl जो है वो पूरा 5 का 5 कंज्यूम हो जाएगा। बताओ CaOH ट्वाइस के मोल्स कितने कंज्यूम होंगे, वापस सोचो, कितने कंज्यूम होंगे? करेक्ट, -2.5 जाएगा। ओके, ना ये तो बस मैंने स्टोइकियोमेट्री के लिए आपको बता दिया। हाउएवर दिस इज नॉट पर्टिकुलरली रिलेवेंट। ये आपका फॉर्म होगा 2.5 एंड दिस इज नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये आपका बचा 0, ये आपका बचा 7.5। ना ये तो बस मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता दिया, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो आपको बस यहाँ पे क्या समझना है, देखो आपको यहाँ पे बस क्या समझना है कि अगर HCl का, ध्यान दो आप सभी, अगर HCl का 5 मोल्स कंज्यूम हुआ है तो वो इफेक्टिवली कितने इक्विवेलेंट्स कंज्यूम हुए हैं? करेक्ट, HCl का एन फैक्टर जो है वो तो 1 है, तो अगर 5 मोल्स कंज्यूम हुआ तो 5 इंटू 1, 5 इक्विवेलेंट C कंज्यूम हुआ। यस नो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर मैं देखूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना होगा? Calcium hydroxide का n factor होगा 2. Now if 2.5 of this were consumed, then effectively how many equivalents were consumed? करेक्ट, इसका भी 5 equivalents ही consume हुआ। आपको एक चीज इसके आगे हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि भले ही 1 मोल के साथ रिएक्ट करे ना करे, 1 equivalent will always react with 1 equivalent. Okay, this is always true. 1 equivalent will always react with 1 equivalent. तो अगर आपके पास 50 equivalent of A है तो आपके पास 100% 50 इक्विवेलेंट ऑफ बी ही होगा। 1 इक्विवेलेंट ऑलवेज रिएक्ट्स विद 1 इक्विवेलेंट। सारे के सारे इक्वेशन इसी तरह से ही बैलेंस होते हैं। ओके, सो इसका भी आपका 5 इक्विवेलेंट कंज्यूम होगा एंड इसका भी 5 इक्विवेलेंट ही कंज्यूम होगा। ओके, सो एनीवेज द पॉइंट इज कि 5 इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 5 इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कंज्यूम हुआ है ना। अब देखो, अब मेरा काम काफी सिंपल हो गया। अब अगर मुझे डेल्टा HR निकालना है, दैट इज 5 इक्विवेलेंट्स हैव बीन कंज्यूम्ड। Now, if 1 equivalent is consumed, then the enthalpy change is minus 13.7. So very simply, if 5 equivalents is consumed, then the enthalpy change would be very simply 5 into minus 13.7. Okay, इसका आंसर क्या आएगा? मेरे ख्याल से 68.5 आएगा। चेक कर लो एक बार। -68.5 किलो कैलोरी। देखो, चेक करो, क्या है सभी को समझ में आया? कॉपी कर लो इसको, देन आई विल गिव यू अ क्वेश्चन। ये वाला आप ट्राई करो। इसमें क्या रिपीट करूंगा बताओ? 5 इक्विवेलेंट्स कंज्यूम हुआ है तो एक इक्विवेलेंट को आपको पता है, 5 इक्विवेलेंट को आपको पता है। भाई अगर वन सब्सटेंस हैज अ मास ऑफ 2 kg, वन सब्सटेंस हैज अ मास ऑफ 2 kg, तो 5 सब्सटेंस का कुल मिला के कितना आ जाएगा? 5 into 2 आ जाएगा। ये भी मैंने एग्जैक्टली वही किया। 1 इक्विवेलेंट से एनर्जी रिलीज इज -13.7, सो 5 इक्विवेलेंट्स का into 5 टाइम्स। लिख लिया? लिख लिया? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप ट्राई करो। नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, not difficult at all. Let's say 1.5 liter of 1 molar HCl, no, sorry, not HCl, H2SO4। हर केस में, यस, हर केस में आपका कब जब भी रिएक्शन होता है हमेशा इक्वल अमाउंट्स ऑफ इक्विवेलेंट्स रिएक्ट, हमेशा, दैट इज ऑलवेज वैलिड। 1.5 liter of 1 molar H2SO4 reacts with sufficient NaOH. Okay, find delta HR। निकालो, इसे करो।
ओके, सो आई कैन सी अ फ्यू आंसर्स. एनीबडी एल्स? देखो लोग क्या आंसर दे रहे हैं. एक आंसर है 41.1 किलो कैलोरी, आई सपोज. ऑप्शन बी है -41.1 किलो कैलोरीज. एनीबडी एल्स? मैंने आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स का स्टेज भी भेज दिया है ना. ओके, कंटिन्यू करो इसको. चेक करें, चेक करें. वेरी वेरी सिंपल. देखो इसमें कुछ भी नहीं है. देखो इसमें कुछ भी नहीं है. विथ सफिशिएंट एनएओएच दिया हुआ है ना, यानी कि आपको एनएओएच जितना रिक्वायर्ड है उतना है. विथ सफिशिएंट एनएओएच दिया हुआ है आपको. ओके. नाउ क्लियरली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड इज मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा. Moles of H2SO4 would be very simply molarity into volume. Okay, so I have 1 is my molarity and 1.5 is the volume. So ये मेरा कितना आ गया, 1.5 moles आ गया. बट हमें मोल्स से काम नहीं चलाना है, हमें इक्विवेलेंस से काम चलाना है. नाउ H2SO4 का n फैक्टर कितना हुआ बताओ. करेक्ट, इसका n फैक्टर हुआ 2. यानी कि 1.5 moles of H2SO4 is actually how many equivalents. करेक्ट, इट इज गोइंग टू बी 3 equivalents. क्या यहां तक सभी को समझ में आया? ओके, नाउ माय वर्क इज डन. अब देखो अगर इसका 3 इक्विवेलेंट्स है एंड यहाँ पे अगर सफिशिएंट NaOH है, यानी कि ऑब्वियसली मैंने NaOH भी कितना यूज किया होगा. NaOH भी मैंने 3 इक्विवेलेंट्स ही यूज किया होगा. ओके, NaOH भी मैंने 3 इक्विवेलेंट्स ही यूज किया होगा. ना अब देखो 3 इक्विवेलेंट. अब मेरा काम तो हो गया. सो डेल्टा HR इज वेरी सिंपली 3 इंटू -13.7. सो यहाँ पर कितना रहेगा, -41.1 किलो कैलोरी. Is that clear to everyone? Okay. Should let's take one more. ये वाला कंप्लीट हुआ क्या सभी का? Done. All right. Let's check one more. NaOH का इक्विवेलेंट ले लिया ना, 3 इक्विवेलेंट विद सफिशिएंट NaOH. तो उसका तो 3 इक्विवेलेंट ले लिया ना. क्लियर? अच्छा, अगर आपका ये पॉइंट है कि इसका 3 इक्विवेलेंट एंड इसका 3 इक्विवेलेंट, इसको हम ऐड नहीं करते. 1 इक्विवेलेंट ऑफ दिस रिएक्ट्स विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ दिस. समझ में आया ना. तो बेसिकली इसका 1 इक्विवेलेंट, इसका 1 इक्विवेलेंट एक साथ ही होता है. ओके, वी डोंट से कि इसका 3 और इसका 3 6. उस तरह से हम काउंट नहीं करते हैं यहाँ पे. Now let's take another example. Let's say 5 liters of 0.5 molar HCl and 10 liters of 0.3 molar CaOH twice was mixed. Okay. Find delta H naught R. Try करो. हो गया क्या?
So I have an answer minus 34.25 kcal. Okay. I have another minus 68.5 kcal. Okay. चेक करें. Check करें. Sufficient time. Now let's see. Let's see. So I have CaOH twice and HCl. So CaOH twice plus 2HCl, giving me CaCl2 plus 2H2O. Let's balance. Now अब देखो, अगर मेरे पास 10 liters of 0.3 molar CaOH twice है, तो मेरे पास effectively इसके moles कितने हैं बताओ? करेक्ट, मेरे पास इफेक्टिवली इसके 3 मोल्स है. ना ध्यान दो, इसके इफेक्टिवली मेरे पास 3 मोल्स है. HCl के मेरे पास इफेक्टिवली कितने मोल्स है बताओ? करेक्ट, HCl के मेरे पास 2.5 मोल्स है. ना फर्स्ट लेट्स राइट इट्स इक्विवेलेंट्स. 3 मोल्स है तो यहाँ पे इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे? करेक्ट, 6 इक्विवेलेंट आएंगे. एंड अगर 2.5 मोल्स है तो इसके इक्विवेलेंट कितने आएंगे? करेक्ट, इसका 2.5 इक्विवेलेंट ही आएगा. राइट, क्योंकि HCl का इन फैक्टर इज 1. क्लियर? नाउ अब देखो 6 इक्विवेलेंट 2.5 इक्विवेलेंट. ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है मेरा? ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट मेरा HCl है. 2.5 इक्विवेलेंट मेरा यहाँ पे लिमिटिंग है, तो यहाँ से आपका 2.5 इक्विवेलेंट कंज्यूम होता है. और अगर यहाँ से 2.5 इक्विवेलेंट कंज्यूम हुआ है तो यहाँ से भी कितना कंज्यूम होगा? यहाँ से भी आपका 2.5 ही जाएगा. ओके, यहाँ से भी आपका 2.5 इक्विवेलेंट जाता है. नाउ दिस रिमेनिंग वुड बी 0. इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे 3.5 बचा, इस यहाँ पे आपका 2.5 इक्विवेलेंट बनेगा. बट व्हाटएवर, दिस इज नॉट दैट रेलेवेंट. पॉइंट हियर इज कि 2.5 इक्विवेलेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है. सो नाउ माय वर्क इज डन. डेल्टा H नॉट R इज इक्वल टू 2.5 इंटू माइनस 13.7. आई गेस इसका आंसर आपका ये आना चाहिए. ओके, चेक कर लो. इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर है? आगे बढ़े. Okay, so this was the first type where you have a strong acid and a strong base. Okay, ये आपका first type of question था जहाँ पर कि आपका strong acid and strong base होता है. Now the other part can be where we have one acid as strong, one part as strong and the other part as weak. Okay, let's say कि आपका जो next type है that is one part is weak, one part strong, other वीक. ओके, ये कुछ भी हो सकता है. इसमें या तो वीक एसिडिक पार्ट हो सकता है या तो आपका वीक बेसिक पार्ट हो सकता है. आइदर ऑफ दिस कैन हैपन. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अभी जो है पहले एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड एक वीक एसिड है. ये तो बस मैंने फॉर एग्जांपल के लिए ले लिया, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है. स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लेट्स टेक एज KOH. वीक एसिड का एग्जांपल, वीक एसिड का मुझे पता है आप लोग क्या एग्जांपल देने वाले. क्या आएगा बताओ? देखो मैं इतना चालू कर देता हूँ, आप लोग तो यही बोलने वाले. CH3COH एसिटिक एसिड आएगा. ओके, नाउ अब देखो ध्यान दो. सो एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक वीक एसिड के बीच में डिफरेंस क्या है कि अ स्ट्रॉन्ग एसिड वुड डिसोसिएट कंप्लीटली बाय इटसेल्फ, whereas अ वीक एसिड क्या होता है, वो तो पूरी तरह से अपने आप को डिसोसिएट नहीं करेगा. यस और नो? ठीक है,
यानी कि अगर मेरे पास HCl हो, ओके, एंड अगर मेरे पास CH3COOH हो, एंड सपोज अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl है एंड अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड है, तो HCl के केस में 100 के 100 मॉलिक्यूल जो है वो तो पूरी तरह से डिसोसिएट कर जाएंगे, ऐसा ना, ओके, बिकॉज बाय डेफिनेशन इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, वो अपने आप ही पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाता है। लेकिन एक वीक एसिड के केस में क्या होगा कि दिस विल नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट, यानी कि अगर मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, मे बी 100 में से लेट्स से 40 मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट करेंगे, ऐसा ना, तो ये आपका सिर्फ 40 फॉर्म होगा एंड ये आपका सिर्फ 40 फॉर्म होगा। सो इफेक्टिवली द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक एसिड और अ स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट एंड अ वीक कंपोनेंट इज हाउ मच दे डिसोसिएट, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब इसका तो 100 मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ 40 मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट किया, तो बाकी के जो 60 मॉलिक्यूल्स हैं उसमें अभी भी CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यहाँ पे रेशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान दो अभी आप। द पॉइंट हियर इज कि अभी भी मेरे पास 60 मॉलिक्यूल्स है जहां पर कि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, ये सुनो। So to completely dissociate this, we will have to provide some energy, yes or no? ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड मुझे ब्रेक करना है, यहाँ पे बॉन्ड मुझे ब्रेक करना है, तो एनर्जी मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा इस चीज को, yes or no? So I'll have to provide some energy here, तभी जाके ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। नाउ अब आप इसको ऐसे समझो, ओके, अंडरस्टैंड इट इन दिस वे। सपोज करो कि आपके पास सिचुएशन 1 है, ओके, सिचुएशन 1 में यू, ओके, यू हैव टू स्पेंड लेट्स से 30 रुपीज, ओके, सिचुएशन 1 में आपने 30 रुपीज जो है स्पेंड किया, नो इनकम नथिंग एल्स। सिचुएशन 2 में आपने स्पेंड जो है वो 30 रुपीज किया, ओके, बट आपको कहीं और से इनकम जो है वो लेट्स से 10 रुपीज आ गया, okay. Now in both of these cases you have spent 30 rupees and 30 rupees, but in situation 2 you have also earned 10 rupees from somewhere, doesn't matter kahan se aaya, okay. So किस केस में आपका ओवरऑल खर्चा कम हुआ, ऑब्वियसली सेकंड वाले केस में आपका ओवरऑल खर्चा जो है वो कम होगा, व्हाई, बिकॉज सम एनर्जी इज आल्सो इन, सो द ओवरऑल अमाउंट दैट वाज आउट, okay, the overall amount that was out has decreased in the second case, yes or no? ओके, नाउ यहां पर भी देखो एग्जैक्टली वही चीज होगा, यहां पर भी देखो एग्जैक्टली वही चीज किस तरह से होगा, और व्हाट इज हैपनिंग हियर इज लेट्स से अगर मैं KOH को मैं CH3COH से रिएक्ट करवा रहा हूं, दिस विल गिव मी K, नॉट K, दिस विल गिव मी CH3COOK प्लस H2O, ओके, ये मेरा बनेगा बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर। ना अब KOH तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा, बट ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दिस विल नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, ओके। एंड सॉल्ट पार्ट में अगर कोई भी एक पार्ट स्ट्रॉन्ग हो, सॉल्ट पार्ट में कोई भी एक पार्ट स्ट्रॉन्ग हो का मतलब क्या होता है कि ये पार्ट जो है ये तो यहां से आया है, एंड ये पार्ट जो है वो यहां से आया है, ओके। नाउ इज दिस पार्ट स्ट्रॉन्ग और वीक, this part is weak, is this part strong or weak, करेक्ट, इसमें स्ट्रॉन्ग है। सो इस सॉल्ट में या कोई भी सॉल्ट में अगर एटलीस्ट एक पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा, इफ बोथ आर स्ट्रॉन्ग इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली, if any one is strong it will dissociate completely, but if both are weak, तो उस केस में वो चीज पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करता है, विल कम टू दैट। बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि इसमें एक पार्ट स्ट्रॉन्ग है, दिस विल डिसोसिएट कंप्लीटली, so this will give me CH3COO minus plus K plus, ओके, एंड लास्ट में ये H2O जो है वो तो एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहेगा। सो अब देखो मेरा ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गया कि मेरा K प्लस और K प्लस तो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, मेरा K प्लस तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो मेरा ओवरऑल इक्वेशन क्या रहेगा कि OH माइनस प्लस CH3COOH गिव्स मी CH3COO माइनस प्लस H2O। देखो आपका ओवरऑल इक्वेशन ऐसा रहेगा क्या, ऐसा रहेगा,
ठीक है ना। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोनों साइड H प्लस ऐड कर रहा हूं। देखो मैं क्यों ऐड कर रहा हूं, आई एम एडिंग H प्लस ऑन बोथ दी साइड्स, एंड व्हाई एम आई डूइंग दैट? सो H प्लस प्लस OH माइनस प्लस CH3COOH gives me CH3, इसको ऐसे लिखते हैं ना, CH3COO माइनस प्लस H प्लस प्लस H2O। ना अब देखो मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर रिएक्शन वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। ठीक है, ये रिएक्शन हमारा क्या है बताओ? दिस इज द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यस नो? ठीक है, देखो आप अगर अपने नोट्स में वापस से पीछे जाके चेक करोगे, तो जहां पर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का लिखते हैं, तो हम ऐसा रिएक्शन लिखते हैं। यस नो? ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट जो है, ये क्या हो गया? ये तो हमारा डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड हो गया। Yes or no? Okay, so now effectively what we have done is we have reduced this equation, or we have converted this equation into a set of two equations। जैसे कि हमने एकदम स्टार्टिंग में आप याद करो, जब हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे फ्रॉम फॉर्मेशन एंड कंबशन, तो हम उस केस में क्या कर रहे थे? हम सेम रिएक्शन को मल्टीपल स्टेप्स में कर रहे थे, फिर चेक कर रहे थे अच्छा फाइनल इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 से कैसे बनाएंगे, या 2 से कैसे बनाएंगे, या 3 से कैसे बनाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे मेरा ओवरऑल इक्वेशन क्या आ गया? Here my delta H reaction is equal to delta H for strong acid base, okay, plus delta H of dissociation. Yes or no? Okay, and strong acid base के लिए मेरा delta H का वैल्यू क्या था? Strong acid base, correct, so it was minus 13.7 plus delta H dissociation. Okay, पहले आप यहाँ तक एक बार लिख लो, पहले आप यहाँ तक एक बार लिख लो, then we'll take an example. जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी आप सिर्फ कॉपी कर लो इसको, देन विल टेक एन एग्जांपल, तब आपको और कॉपी कर लिया। सभी ने कॉपी कर लिया? ओके, नाउ अब देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। डोंट वरी, विल टेक सफिशिएंट एग्जांपल्स। सो लेट्स से if delta H dissociation for, let's say, acetic acid, हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं, for acetic acid is equal to, let's say, 1.7 kilocalorie per equivalent, then find one, then find delta H reaction for 1 mole of CH3COOH reacting with, let's say, 1 mole of NaOH। पहले आप पूरा सवाल लिख लो। Second, 5 moles of CH3COH reacting with 5 moles of CaOH twice, and third, चलो 5 moles of NaOH लेते हैं, 5 moles of NaOH, and let's say 5 moles of CH2COH reacting with 5 moles of CaOH twice। पहले आप पूरा लिख लो।
देख लिया सभी ने? देख लिया सभी ने? ओके, लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। मैं फर्स्ट वाला आपको बताऊंगा, सेकंड वाला भी चलो मैं आपको बता दूंगा, बट देखो आप ये चीज इजीली आप समझ सकते हो। नाउ डेल्टा एच डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। का मतलब क्या है कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिटिक एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट हो, तो मुझे उसको 1.7 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। नाउ अब इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड आई हैव अ वीक एसिड, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा है जिसको कि डिसोसिएशन में हेल्प चाहिए होगा? इसमें से कौन सा है जो कि अपने आप पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा? ऑब्वियसली सिर्फ एसिटिक एसिड जो कि यहाँ पे पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। NaOH तो अपना पूरी तरह से अपने आप ही डिसोसिएट हो जाएगा, सो दैट पार्ट डजंट नीड एनी हेल्प। नाउ सो अब देखो यहाँ पे अब मेरा डेल्टा एच रिएक्शन क्या हो जाएगा? जैसे अभी हमने क्या डिस्कस किया, -13.7 प्लस डेल्टा एच डिसोसिएशन। ओके, सो अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरा वन इक्विवेलेंट ऑफ CH3COOH एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ NaOH रिएक्ट करेगा, सो बताओ मेरा डेल्टा एच ऑफ आर क्या रह जाएगा? सो दिस इज -13.7 प्लस 1.7। ओके, सो ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा वैल्यू जो है वो -12 आ गया, -12 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। समझ में आ गया? ओके, so now our question has become very simple. 1 mole of CH3COH, this is how many equivalents? This is one equivalent. And 1 mole of NaOH, this is how many equivalents? This is also one equivalent. ठीक है, तो one equivalent of this and one equivalent of this। अब आप बताओ, तो फर्स्ट वाले का मेरा आंसर वैसे भी क्या आ जाएगा? करेक्ट, फर्स्ट वाले का आंसर मेरा वही -12 किलो कैलोरी ही आ जाएगा। ओके, सेकंड वाले का अब आप मुझे खुद से बताओ, सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा? नाउ दिस हैज बिकम वेरी सिंपल। सेकंड वाले का क्या आएगा? सेकंड वाले का 5 इक्विवेलेंट्स है ना। ओके, 5 मोल इसका हुआ, तो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा? 5 इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या आंसर आएगा बताओ? आपके पास 1 इक्विवेलेंट का आंसर है, तो 5 इक्विवेलेंट का कितना आ जाएगा? वेरी सिंपली -60 आ जाएगा। ओके, नाउ वन ऑफ यू जस्ट गिव मी एन आंसर ऑफ -5.2। नाउ आई अंडरस्टैंड कि आपका ये आंसर कैसे आया। आपने क्या किया? बेसिकली आपने -13.7 प्लस 5 इंटू 1.7 कर दिया। नाउ दिस पार्ट आई अंडरस्टैंड एंड दिस पार्ट इज करेक्ट, बट आपको क्या समझना है, अगर मैं 5 इक्विवेलेंट्स इसका यूज कर रहा हूँ, तो ये भी तो इंटू 5 हो जाएगा ना। समझ में आया? ओके, सो कंटिन्यू। अब देखो लास्ट पार्ट। अब देखो लास्ट पार्ट, व्हाट डू आई हैव हियर? सबसे पहले पे अटेंशन। आई हैव 5 इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, आई हैव 5 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, यानी कि ये कितना हुआ? ये मेरा 5 इक्विवेलेंट्स ही हुआ। आई हैव 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कितना इक्विवेलेंट्स हुआ बताओ? करेक्ट, ये मेरा 10 इक्विवेलेंट हुआ। नाउ ऑब्वियसली वी कैन सी हियर व्हाट इज माय लिमिटिंग रिएजेंट। अगेन मेरा 5 इक्विवेलेंट्स ही लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, तो पिछले केस में भी 5 था, अब इस केस में भी मेरा 5 ही है, तो थर्ड वाले केस में भी मेरा आंसर कितना आएगा बताओ? हाउ मच एनर्जी वाज रिड्यूस्ड? -60। ओके, नोट कर लो। दिस वाज जस्ट द फर्स्ट एग्जांपल, वी विल टेक मोर। हाँ, यहाँ पे आपका 5 इक्विवेलेंट है, यहाँ पे 10 इक्विवेलेंट है, ऑब्वियसली लिमिटिंग आपका ये वाला हुआ, तो इसके हिसाब से रिएक्शन होगा। डन, सभी ने कंप्लीट कर लिया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा मैं उल्टा करके दे रहा हूँ, बट आपको समझ में आ जाएगा। अभी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस की बात नहीं है,
देखो, सो आई एम गिविंग यू अनदर रिएक्शन. अब देखो आपको पूरा समझ में आ जाएगा. लेट्स से if if 5 moles of acetic acid and 7 moles of NaOH react. ये चलो आपको पहला क्वेश्चन मैं इजी देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 मोल्स ही कर देता हूँ. ओके, एंड 5 moles of NaOH react. 5 moles of NaOH react, and if delta H naught R is equal to, let's say, -40, okay, is equal to -40 kilocalorie, then find delta H dissociation for CH3COOH, and also find delta HR when 10 equivalents of, yeah, chalo 10, let's make it 15, and 15 equivalents of CH3COOH and 15, yeah, chalo, and 20 equivalents of NaOH react. Try करो. ट्राई करो आराम से. यहाँ इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है. पहले आप फर्स्ट पार्ट करो आराम से, फिर आप सेकंड पार्ट करो. आप ये ध्यान में रखो कि डिसोसिएशन जो है वो हमेशा पर इक्विवेलेंट दिया जाता है. So here when you will try to find out delta H dissociation, you will try to find out per equivalent. Try करो. So I have an answer 5.7. ठीक है, ऑप्शन ए हुआ ये. चेक करें.
चेक करें या और टाइम चाहिए? चेक करो। Alright, देखो। सो फर्स्ट पार्ट देखो, इफ 5 मोल्स ऑफ CH3COH, यानी कि ये कितने इक्विवेलेंट्स हुए बताओ? करेक्ट, ये आपका 5 इक्विवेलेंट ही हुआ। एंड 5 मोल्स ऑफ NaOH, यानी कि ये आपका कितना इक्विवेलेंट हुआ? ये भी आपका 5 इक्विवेलेंट ही हुआ। ओके, 5 equivalents of this, 5 equivalents of this, clearly the amount that has reacted is 5 equivalents. Yes or no? Okay, so effectively देखो क्या हुआ, जब 5 equivalents of each react किया, तो in that case मेरा delta H naught R was -40. ओके, तो अगर इन सभी का 1 इक्विवेलेंट रिएक्ट किया होता तो मेरा डेल्टा एच आर कितना आता बताओ? करेक्ट, -8 आता। ओके, ना 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो मेरा बेसिक रिएक्शन क्या है? डेल्टा एच आर इज इक्वल टू -13.7 प्लस डेल्टा एच डिसोसिएशन। यस और नो? ओके, सो ऑल आई हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ -8, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ -13.7 एज इट इज, प्लस मेरा क्या आ गया? डेल्टा एच डिसोसिएशन, विच मीन्स दैट मेरा डेल्टा एच डिसोसिएशन का अब बताओ वैल्यू क्या आ गया? करेक्ट, 5.7 प्लस 5.7 या -5.7, अपना कैलकुलेशन खुद ही देख के बताओ क्या आएगा? +5.7 आएगा। ओके, सो मेरा पहला आंसर जो है वो ए हो गया। समझ में आया क्या? ओके, नाउ is everybody clear on the first part of the question? Okay, now second part of the question, I have 15 equivalents of this and 20 equivalents of this. Clearly यहाँ पे मेरा एक्चुअल में फिर कितना इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेगा, या whichever is my limiting reagent, यहाँ पे 15 इक्विवेलेंट जो है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सो यहाँ पर देखो मेरे पास 5 का डेटा है, 5 से आता है -40, सो 15 से कितना हो जाएगा? सिंपली 3 टाइम्स हो जाएगा। ओके, तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? -120 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? okay, फटाफट कंप्लीट करो जिसका भी कंप्लीट हुआ। डन। So this is when one part is weak. Now of course there is a possibility कि both parts are weak. Complete हो गया ना? Now of course there is a possibility that both the parts are weak. जैसे कि suppose करो both acid and base are weak. In that case मेरा basic formula जो है वो same ही रहेगा. That is now also my delta H R is equal to -13.7 प्लस डेल्टा एच डिसोसिएशन। मेरा फॉर्मूला जो है वो अभी भी यही रहेगा, बस अब अपने को क्या समझना है कि अब डिसोसिएशन में आपके दोनों ही पार्ट जो है वो इंक्लूड रहेंगे। दैट इज अब यहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ मुझे बेस भी चाहिए होगा, ओके, एंड मुझे डिसोसिएशन ऑफ एसिड भी चाहिए होगा। एज सिंपल एज दैट। लेट्स टेक वन वेरी सिंपल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट डेल्टा एच डिसोसिएशन for let's say NH4OH, it is a weak base। क्या वैल्यू चाहिए इसका बताओ? Let's put this as 3 kilocalorie per equivalent, and let's say delta H dissociation for let's say CH3COOH is let's say 1.7 kilocalorie per equivalent, okay, for example। now अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम इसी एग्जांपल में ही कंटिन्यू कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज what is the delta HR when 1 mole of CH3COOH and 1 mole of NH4OH react? This is part 1. Part 2, same delta HR when 5 moles of CH3COOH and 5 moles
of NH4OH react. Okay, try करो, बहुत difficult. By the way, आप लोग को अभी एक मैसेज आया होगा, tomorrow 5 offices are closed for Mahadev. आया नहीं आया? You guys would have just received it. That is only for office. Classes are still on. हो गया? आजकल छुट्टी छुट्टी नहीं लगता क्यों भाई? बैकलॉग एंड रिवीजन. अभी आपका अगला 1.5 साल तो कोई छुट्टी नहीं है. जब तक आप जेई एडवांस नहीं दे देते तब तक आपका कोई छुट्टी नहीं है. मतलब छुट्टी तो ऑब्वियसली है, यू विल हैव वेकेशंस बट दे विल नॉट बी वेकेशंस एग्जैक्टली. पूरा वेकेशन आई थिंक आपका शायद 10 से 20 तक है वेकेशन. आई एम नॉट 100% श्योर. आपको मैसेज आ जाएगा बट आई थिंक इट इज फ्रॉम 10th to 20th. So I have an answer -9 and -45. Let's check. Option A -9 and -45. Anybody else? Anybody else? सबका सेम आ रहा है? देखो चेक करते हैं. Pretty simple. सिंपल सा ही है देखो. So what I have here is आपको पहले 1 mole of CH3COH. This is basically 1 equivalent. And 1 mole of NH4. This is also 1 equivalent. तो effectively आपका 1 equivalent ही react कर रहा है. So 1 equivalent of this and this react करता है, यानी कि it has to be -13.7 plus delta H dissociation. तो ये आपका क्या आ जाएगा? -13.7 plus delta dissociation of acid plus delta dissociation of base. As simple as that. So आपको base का dissociation दिया हुआ है 3, acid का dissociation दिया हुआ है 1.7. So this is 4.7 -13.7 and 4.7. ये कितना आ जाएगा? -9 आ जाएगा. ओके. सेकेंड पार्ट, अगर 1 इक्विवेलेंट का वैल्यू इतना है, यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ दिस एंड 5 मोल्स ऑफ दिस, कोइंसिडेंटली ये भी आपका 5 इक्विवेलेंट आ रहा है एंड ये भी आपका 5 इक्विवेलेंट आ रहा है. तो 1 इक्विवेलेंट का अगर 9 है तो ऑब्वियसली 5 इक्विवेलेंट से कितना आ जाएगा? -45 आ जाएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके. सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन क्वेश्चन एज होमवर्क. एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप लिख लो. You can solve this or we can solve this or we can check this out in the next class. ठीक है, क्वेश्चन आप लिखो. NH4OH
plus HCl gives you NH4Cl plus H2O. यहाँ पर आपका डेल्टा H का वैल्यू इज लेट्स से डेल्टा H का वैल्यू इज लेट्स से -30 ब्रैकेट में फॉर 3 इक्विवेलेंट्स, यानी कि जब 3 इक्विवेलेंट दोनों का रिएक्ट किया तो आपका डेल्टा H का वैल्यू -30 था, ओके, फॉर 3 इक्विवेलेंट. सेकेंड पार्ट इज जब आप NaOH प्लस CH3COOH रिएक्ट करवा रहे हो, इट गिव्स यू CH3COONA plus H2O. Now for this delta H is equal to let's say -45 for 5 equivalents. Okay, आपको और के डेटा दिया हुआ है, आपको और के डेटा दिया हुआ है. I don't think any other data is required. Question: find delta H dissociation of acid, delta H dissociation of base, okay, and what is the delta HR, what is the delta HR when NH4OH plus CH3COH react to give you CH3CONH4 plus H2O, and यहाँ पे सपोज करो आप 8 इक्विवेलेंट्स एंड 8 इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करवा रहे हो, ओके. सो क्वेश्चन में देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है. फर्स्ट पार्ट आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेल्टा डिसोसिएशन ऑफ एसिड. ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड का निकालना है. डेल्टा डिसोसिएशन ऑफ बेस ऑब्वियसली फॉर NH4OH, ओके, एंड देन डेल्टा H ऑफ रिएक्शन फॉर दिस वन. लिख लो क्वेश्चन. दिस इज योर होमवर्क. वी विल डिस्कस दिस टुमारो. कॉपी कर लो. मिड टर्म का सिलेबस क्या है देखा जाएगा. आपका मिड टर्म कब से है? आई थिंक फर्स्ट से है ना, ये मंडे फर्स्ट ना, फर्स्ट से है ना, तो बहुत टाइम है, तब का तब देखा जाएगा. देख लिया? All right. So that's it for today. We'll continue right from here next.